فیڈر بھی اگر اس پروگرام سے ہٹ کے بند ہوگا یا اس کے اوپر 10 منٹ کی بھی ایڈیشنل لوڈ شیڈنگ ہوگی، اس کا پورا حساب، اس کی رسپانسبلٹی کوئی نہ کسی کو ضرور اٹھانی ہوگی۔ حکومت کا لوڈ شیڈنگ جزوی طور پر ختم کرنے کا دعویٰ، کتنی حقیقت کتنا فسانہ؟ کیا یہ نئے انتخابات کا سیاسی نعرہ یا مجھے کیوں نکالا کہ سیاسی سمراٹ سمیٹنے کی کوشش؟ ایم کیو ایم پاکستان میں تقسیم در تقسیم کا عمل، کامران ٹیسوری کی بھی فاروق ستار سے راہیں جدا، معاملہ رابطہ کمیٹی پر کمزور گرفت کا یا پارٹی آئین پر ترامیم کے نامعلوم دباؤ کا؟ اور امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس ایک بار پھر ڈو مور کا پیغام لے کر پاکستان پہنچ گئے، کیا سیکیورٹی اور سیاسی لیڈرشپ اپنا واضح پیغام دے پائے گی؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ آج سے پاکستان کے 62% بجلی تقسیم کرنے والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ یہ کل وزیر توانائی سردار اویس احمد الغاری نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا۔ لوڈ شیڈنگ اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ایک طاقتور سیاسی نعرہ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور میں جب لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے احتجاج اور دھواں دھار تقاریر میں اس وقت کی حکومت کو بہت تانے دیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں کئی بار سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2018 تک لوڈ شیڈنگ کے مکمل خاتمے کے دعوے کیے ہیں۔ حال ہی میں بجلی کے وزیر مملکت عابد شیر علی نے تو اسی نومبر میں خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ دسمبر اور سردیاں شروع اور ملک کے تقریباً 1 کروڑ بجلی صارفین بدستور 2 سے 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا سامنا کریں گے۔ پروگرام میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کس حد تک ممکن ہے اور حکومت کے دعوے زمینی حقائق سے کتنے جڑے ہیں، اور پھر ایم کیو ایم پاکستان کے ایک اور رکن جماعت سے الگ کامران ٹیسوری کی علیحدگی ایم کیو ایم پاکستان میں گروہ بندیاں کی وجہ سے، کیا ان کی منزل پاک سرزمین پارٹی ہے یا سیاست ہی وہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کا 1 روزہ دورہ، جیمز میٹس کا استقبال کرنے ان کے پاکستانی ہم منصب یا اور کوئی متعلقہ وزیر نے نہیں کیا، استقبال دفتر خارجہ کے اہلکار نے کیا۔ پاکستان اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اہداف علیحدہ ضرور ہیں اور یہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کو جزوی طور پر ختم کرنے کے دعوے اور بجلی کی ترسیل اور پیداوار کے حوالے سے زمینی حقائق کیا ہیں؟ ہم بات کریں گے انرجی ایکسپرٹ اور ایس ٹی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عابد سلیری سے، لیکن پہلے سنتے ہیں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے اس حوالے سے۔ میرے علاقے میں تو زیرو ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ ویسے جو ان کی کارکردگی دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے کو 1 سال کے اندر مزید جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک کر لیں۔ سنتے ہیں 4 سالوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، لیکن اب تک سن رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی ممکن نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو، اور نہ ان کا یہ ارادہ ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا۔ یہ تو بالکل ایک طرح کا نا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی۔ جو اتنے سالوں میں نہیں جان چھوٹی ہماری، تو اب کہاں چھوٹے گی؟ یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ لوڈ شیڈنگ کو تو ایک سائڈ پہ کر لینا، ابھی تو الیکشنوں کا ان کا شور ڈلا ہوا ہے، ابھی کروا لے، کل کروا لے، کب کروائے، تو ملک کا جو خسارے کر رہے ملک کو یہ ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ کیا لوڈ شیڈنگ واقعی ختم ہو سکتی ہے، اور ابھی تک جو اعلان کیا تھا کل، یہ کتنا زمینی حقائق سے جڑا ہوا ہے؟ عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں روشنی ڈالنے کے لیے۔ عابد صاحب، جو زیادہ تر فیڈرز جن پر لوڈ شیڈنگ سے استثنا ہے، یہ پنجاب میں واقع ہیں۔ دیکھیے، اصل چیز تو یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ لوڈ شیڈنگ سے خاتمہ بالکل ممکن ہے، اور وہ ممکن اس صورت میں ہے کہ پاکستان میں جنریشن گیپ نہیں تھا۔ پاکستان میں اصل چیز یہ تھی افورڈیبل انرجی جو جنریٹ کرنا، اور ابھی پرائم منسٹر نے پچھلے مہینے جب اسموگ زیادہ شروع ہو گئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے بات کی تھی کہ کچھ ان ایفیشینٹ جنریشن پلانٹس ہیں جن کو بند کر دیا جائے۔ تو جسٹ ناظرین کے لیے کہ آپ کے پاس ایفیشینٹ اور ان ایفیشینٹ جنریشن پلانٹس ہوتے ہیں، جیسے ہے کہ آپ کی بعض گاڑی جو ہے وہ 1 لیٹر میں 12-14 کلومیٹر کرتی ہے، کوئی گاڑی جو ہے وہ 1 لیٹر میں صرف 2-3 کلومیٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سفر طے کرنا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے انرجی ایفیشینٹ کار استعمال کرنے پہ، لیکن اگر آپ کو ہر صورت میں ساری گاڑیاں چلانی ہیں تو یقیناً وہ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ
जनरेशन गैप पे काबू पाने के लिए तमाम प्लांट जो हैं वो इस्तेमाल में आ जाएंगे। दूसरा यकीनी तौर पे सीपैक के अंडर कुछ जो नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हुआ है उनसे भी जनरेशन जो है उसमें कंट्रीब्यूशन हुई है। और तीसरी चीज़ ये कि सर्दियों में वैसे भी बिजली की खपत जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और उसकी वजह से भी डिमांड सप्लाई गैप जो है उस पर पूरा काबू पाया जा सकता है। ये कितनी क्योंकि कल जो ऐलान यही हुआ था कि पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है कमी के बजाय अब ज्यादा की तरफ है। जी, यानी वो ये था, ऐलान ये हुआ था कि जो डिमांड सप्लाई गैप है उसमें पहली दफ़ा सरप्लस आ गया है। तो सरप्लस आने का मतलब ये है कि इस वक्त पैदा ज़्यादा हो रही है, उसकी डिमांड जो है वो कम है। और जो कि मैंने आपको तीनों फैक्टर्स बताए कि अगर हम सारे प्लांट्स चला दें, सीपैक का कंट्रीब्यूशन भी शामिल कर लें और ये जो सर्दियों में डिमांड कम होती है ये भी शामिल कर लें, तो थ्योरेटिकली बाकी हमारे पास जो जनरेशन होगी वो सरप्लस होगी। लेकिन इस वक्त जो कल वज़ीर मौसूफ ने भी कल बजाज जिसकी तरफ इशारा किया वो ये था कि लोड शेडिंग तो उन्होंने ख़त्म कर दी, डिमांड सप्लाई गैप जो मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन तो वो जहाँ जहाँ पे उनकी रिकवरी पूरी हो रही है वहाँ पे अब सप्लाई हो रही होगी। अभी भी बहुत सी जगहों पे बिजली जाएगी और वो इसलिए जाएगी कि आपका ट्रांसमिशन इस काबिल नहीं कि इसको सहार सके, तो कई जगह पे फीडर स्ट्रिप करेंगे। इस पर कई बार मुतनब्बे कर चुका है कि आप बिजली ज़रूर ज़्यादा पैदा करें, लेकिन जब तक आपकी ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक वो मुश्किल हो जाएगा। तो यकीनी तौर पे अभी भी बाज़ इलाके ऐसे होंगे यहाँ पे कि बिजली नहीं होगी और उसकी वजह या तो फीडर ट्रिप करेंगे या बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी। अब लोगों को मेरा ख्याल है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए इससे पहले कि हम इस पर कोई राय बनाएं कि लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो सकता है नहीं, या इन 65% हो गया कि नहीं। अगर तो वाकई ख़त्म हो गया तो आपको अगले 3-4-5 रोज़ में पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो तब भी पता चल जाएगा कि ट्रिप होना शुरू हो गया या क्या हो गया। लेकिन ये एक हकीकत है कि इलेक्शन से पहले मौजूदा गवर्नमेंट जो है मेरी जो दानिश में वो यकीनन इस बहरान पर काबू पा लेगी। ये अलग बात है कि महंगी बिजली पैदा हो रही होगी और ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो बहुत सारे माहिरीन आपकी तरह के वो ये कह रहे हैं कि यूनिट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो अगर ये आप नाज़रीन को समझा सकते हैं। ये पर यूनिट इसी तरह ज़्यादा आएगी ना कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं जो कि 3-4 किलोमीटर करती है लीटर में, फिर दूसरी गाड़ी 12 किलोमीटर करती है, तीसरी गाड़ी जो कि 6 किलोमीटर करती है, तो इन तीनों की जो एवरेज कॉस्ट आपके फ्यूल की कॉस्ट तो बढ़ेगी और जो एनर्जी पैदा होगी वो फिर डिवाइड हो जाएगी टोटल फ्यूल कास्ट से। अभी जो हमें नेपरा आपके रेट डिटरमिन करता है तो वो एनर्जी मिक्स देखता है, हमें सार्फिन को जो बाज़ रिलीफ मिलता है कि क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम थी तो अक्टूबर के महीने के बिलों में 150 रुपया कमी या 200 रुपया कमी उसमें कर दी जाएगी। तो अगर वो महंगा इस्तेमाल हो रहा होगा तो महंगी हो जाएगी, तो बिजली महंगी बनेगी। इन तमाम सूरतों में एवरेज से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर अनइंटरप्टेड सप्लाई आपको मिल जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये शायद बहुत महंगा सौदा नहीं होगा। कम से कम जो मुआशी सरगर्मी है, लाइवलीहुड और डे टू डे एक्टिविटीज़ वो तो चलना शुरू होंगी। सिर्फ नुकसान इस चीज़ का होगा अगर हुकूमत ने पोलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए सर्कुलर डेट में इजाफा करना शुरू कर दिया, यानी बर्डन कंज्यूमर को डायरेक्ट पास ऑन ना किया और इसको अगर सर्कुलर डेट में एक्यूमुलेट कर लिया तो फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। ये भी तो दुरुस्त है कि अभी भी हुकूमत जो है रियायत कर रही है बिजली जो हम जो खरीद रहे हैं सब्सिडीज़ पर। जैसे इस वक्त भी बहुत से ऐसे इसमें कंज्यूमर्स हैं जो कि सब्सिडाइज बिजली हासिल कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको महंगी लेना पड़ती है। मसलन आपके जो कमर्शियल जो मीटर वाले हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको महंगी बिजली लेना पड़ रही है। जो घरेलू सार्फिन में मखसूस यूनिट से नीचे वाले हैं उनको सब्सिडाइज मिल रही है। अगर ये सब्सिडी का सिलसिला हुकूमत ने जारी रखा और महंगी बिजली भी पैदा होती गई तो फिर ये सर्कुलर डेट में इजाफा होगा और इसका फिस्कल डेफिसिट साल के एंड पे हमें पता चलेगा कि वो बढ़ चुका है। अच्छा, एक और जो सवाल है कि जो हमें बिजली भी मिल रही है, जो सप्लाई हो रही है, उसका तनासब कितना हाइडल से है, कितना जो तेल या ये चेंज होता रहता है। जब आपके सोइंग सीज़न होगा उस वक्त आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होगा तो डैम्स की जगह वो पानी जो है वो ज़राअत में चला जाएगा। जब आपके पास गैस अभी हीटिंग में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी तो जाहिर है कि गैस का तनासब कम हो जाएगा। जो प्लांट LNG पे हैं वो तो कुछ होंगे, बाकी सारा का सारा फर्नेस ऑयल पे चला जाएगा। तो गर्मियों में गैस की चूँकि घरेलू तलब कम हो जाती है तो गर्मियों में आप देखेंगे कि गर्मियों में गैस ज़्यादा होती है, पानी भी ज़्यादा मिल जाता है। सर्दियों में ये वाटर शॉर्टेज भी होती है क्योंकि इरिगेशन सीज़न शुरू हो जाएगा अभी चावल की कटाई के बाद, और ये गैस जो है वो हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो अब ज़्यादा जो होगी या तो वो फर्नेस ऑयल पे होगी या वो जो आपकी
LNG पे जो कुछ प्लांट्स हैं उस पे। तो इसमें सस्टेनेबल कौन सा ज़्यादा है? देखिए सस्टेनेबल तो रिन्यूएबल सोर्स जो है ना, जरिया, यानी कि अगर तो हम उसको क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट के हवाले से देखें तो हाइडल सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर है क्योंकि उसकी पोल्यूशन सबसे कम है। उसके बाद गैस आती है, उसके बाद फर्नेस ऑयल है, उसके बाद कोयला है। तो ये 4 दर्जात बनते हैं। पानी सबसे साफ शफाफ है, उसके बाद आपकी नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस पे अब 2 कैटेगरीज हो गई हैं। अगर तो वो आपकी पाकिस्तानी डोमेस्टिक गैस है तो वो सस्ती होगी, अगर वो इम्पोर्टेड गैस है तो महंगी होगी। उसके बाद आपका फर्नेस ऑयल है, कोयले पे भी प्लांट जो शुरू होंगे तो वो सस्ते होंगे तेल से, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएंगे। अच्छा, LNG जो है उसका तनासुब कितना रहेगा? क्योंकि अभी हाल ही में वज़ीर आज़म ने भी इनॉग्रेशन की थी एक प्लांट की। देखिए LNG जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कुदरती गैस जो अपनी मकामी थी उसके ज़खायर चूँकि कम होते जा रहे हैं, नए ज़खायर नहीं हैं, तो आइडिया तो यही है हुकूमत का कि वो तमाम प्लांट जो कि इस वक्त कुदरती गैस पे चल रहे हैं उनको सुई सदरन या सुई नादरन अगर सप्लाई दे रही है तो वो LNG की तरफ आते जाएं ताकि विंटर में जो घरेलू सार्फिन को गैस की लोड शेडिंग का सामना होता है उसके छुटकारा हासिल किया जा सके। तो इसका मतलब है कि इस वक्त अगर आपकी 30% के करीब एनर्जी जो थी वो गैस पे थी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये 30% भी LNG पे जाएगा ताकि कुदरती गैस जो है ये बाकी चीज़ों पे इस्तेमाल हो सके। लेकिन LNG पर भी सवाल या जो डील्स मुआहदे हुए हैं उस पर भी काफ़ी सवालात और कुछ वो डेफिनेटली खेल चल रहा है। डेफिनेटली उस पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और जब तक आपके पास कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस ना आ जाए कि वो डील जो थी वो महंगी थी, सस्ती थी या बाकी मुल्कों के मुकाबले में उसका रेट क्या था। फॉर एग्जांपल जो कतर के साथ थी वो 13.37% थी इसका ब्रेंट का, फर्नेस ऑयल का। अब 11% पे बात हो रही है, 11.08 पे। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से हम बाकी ममालिक से LNG लेते हैं और बीइंग अ कैप्टिव बायर हम कहाँ पे अपनी लीवरेज जो है वो ले पाए। अच्छा, इलेक्शन से पहले ये बहुत ज़ाहिर है एक अहम कामयाबी होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए, लेकिन आपकी नज़र में हमने क्योंकि इस पर काफ़ी बात की है, लेकिन आखिरी अगर कुछ ख़ैरात आप हमें बता सकते हैं, सस्टेनेबल हो सकेगी या बस इलेक्शंस तक वो एक दिखावे के लिए? ये मेरा ख्याल है सस्टेनेबल तब तक हो जानी चाहिए इलेक्शन के बाद। महंगी होगी, गंदी होगी, लेकिन सप्लाई अवेलेबल रहेगी। उसके बाद फिर ये कंज्यूमर पे है कि वो कितना बोझ उठा सकते हैं। अगर सब्सिडाइज हुई भी तो इलेक्शन तक होगी, इलेक्शन के बाद सब्सिडीज़ पे नहीं होगी, थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस वक्त अपने UPS वाले स्कीम को देखें तो हम 4 यूनिट UPS के ज़ाया करके 1 यूनिट जो है वो सेव करते हैं। जो अगर आप एवरेज बैटरी की लाइफ देखें कि किस तरीके से उसमें बिजली स्टोर होती है और कितनी हम इस्तेमाल करते हैं, तो अभी भी सार्फिन पे बिल जो है वो तकरीबन उसी हिसाब से पड़ रहे हैं जिनकी बैटरीज जो है वो कॉन्टीन्यूसली चार्ज हो रही होती हैं। तो शायद फ़र्क जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन यकीनन पड़ेगा। उसके बाद नेट मीटरिंग आ जाने से यकीनन लोग जो है वो सोलर पैनल्स पे मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। मुझे आज ही एक साहब मिले थे जो कह रहे थे कि नेट मीटरिंग के नतीजे में उनका इस महीने का बिल 0 आया क्योंकि वो अपनी सोलर एनर्जी पैदा कर रहे थे। तो ये रिवर्स मीटरिंग की वजह से भी इसमें कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा, स्पेशली जिनके घर अपने हैं या जो इनके पास इतनी इस्तात है और इतनी स्पेस है कि वो अपने सोलर पैनल लगा सकें। तो मेरा ख्याल है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का एनर्जी फ्यूचर जो है कम से कम सप्लाई के हवाले से, मैं कास्ट या उसकी जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसकी बात नहीं कर रहा, सप्लाई के हवाले से मुझे लगता है कि बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का आबिद साहब। लेते हैं ब्रेक के बाद। MQM पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। MQM में ग्रोहबंदियाँ और अहम कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात और जमात से दूरियाँ, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के साबिक़ रुकन कामरान टिसोरी। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले तो कामरान साहब, आपने अलहदगी का ऐलान कर दिया, लगता है कि इस बार अम्मी की इसका इसरार जो है वो काम नहीं आया। पहले तो आपने एक लफ्ज़ कहा कि साबिक़ रुकन, तो मैं इसकी तस्दीक कर दूँ कि अच्छा, मैंने MQM पाकिस्तान ना तो छोड़ी है ना अलहदगी का कहीं ऐलान किया है। मैंने ये ज़रूर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने फ़ारूक सत्तार भाई से कहे हैं। तो इसका मकसद ये ना लें कोई भी कि कोई ग्रुप बंदी है या मैंने पार्टी से कोई अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो मैंने कहा आपकी तस्दीक कर दूँगा।
जी शुक्रिया, तस्दीक करने का शुक्रिया। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर अगर हम मज़ीद बात कर सकते हैं, क्योंकि कामरान साहब ग्रोहबंदियों की बात जो है कई MQM के साबिक रुकन, आप जैसे तो अब साबिक नहीं है लेकिन साबिक अरकान जो हैं उनका दावा है कि ग्रोहबंदी है, और फिर फ़ारूक सत्तार साहब की अपनी जो लीडरशिप है उस पर भी सवालात उठते रहे हैं। देखिए, ग्रुपबंदी किसी की ख्वाहिश हो सकती है और उस ख्वाहिश का कुछ लोगों ने खुलकर भी इजहार किया है, जिसकी मिसाल मैं एक तहरीक इंसाफ के तीसरे दर्जे के ख़ुद साख्ता लीडर की कर दूं, जिनकी अपनी ना पार्टी में कोई ओहदा है ना कोई हैसियत है। कभी वो शारा फैसल के चक्कर लगाते हैं, कभी किसी के घर के चक्कर लगाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने भी कोशिश की थी कि वो फ़ारूक सत्तार भाई पे असरअंदाज होकर किसी ग्रुप की शक्ल इख्तियार करवा दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान उस चट्टान की तरह है। देखें, आपने एक बात कही ना, इख्तलाफात राय रखना वो हर एक का बुनियादी हक़ है और जमहूरियत का हुस्न कहलाता है। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि मीडिया के बहुत सारे लेकिन वाज़े तौर पर आपने MQM पाकिस्तान आपने नहीं छोड़ा, अलहदा नहीं हुए। हाँ, वो तो मैं कह चुका ना आपको। मैंने कहा मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अभी तक हैं, और वो मैंने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से उनका जिक्र किया है। लेकिन आपकी बात को मैं और आगे बढ़ा दूं। तहफ़्फ़ुज़ात पे अगर कामरान साहब आ सकते हैं। मैं थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा। जिस तरह आपने ग्रुप बंदी की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मीडिया हाउसेस में भी आप सब अलग-अलग चैनल्स पे बैठते हैं और एक अलग-अलग ग्रुप नज़र आता है, लेकिन जब मीडिया के ऊपर कोई कदगन लगती है या मीडिया के किसी भी ग्रुप के साथ कोई ज़्यादती होती है तो सब आप एकजा और यकजा नज़र आते हैं। इसी तरह आप ग्रुप बंदी की मिसाल MQM पाकिस्तान में कैसे दे सकते हैं कि जब आज हैदराबाद में तमाम के तमाम साथी सब एक साथ मौजूद हैं। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जिसमें सब मौजूद होते हैं। हाँ, कोई एक आध किसी वजह से किसी मजबूरी के तहत ना हो तो अगर उसको ग्रुप का नाम देकर ख़बर बनाई जाए तो फिर इस तरह तो रोज़ाना हम अपने अंदरूनी इख्तलाफ राय की ख़बरें चैनल्स पर देखें और फिर उनके जवाबात देते रहें, तो ये एक मुनासिब बात नहीं है। MQM अच्छा, फिर अगर आप ग्रुप बंदी की ही बात कर लें तो इस तरह तो मुस्लिम लीग, क्योंकि जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं और जो साबिक कारकुनान हैं वो कहते रहे कि इस तरह तो अलहदा आमिर खान ग्रुप है एक। जी नहीं, मैं इसी तरह कह रहा हूँ। इसी तरह तो ये कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी में भी दो ग्रुप हैं, एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, एक नवाज़ शरीफ साहब का ग्रुप है। जमात इस्लामी जैसी जमात में कहा जाता है कि ये लाहौरियों का ग्रुप है, ये लियाकत बलोच साहब का ग्रुप है। पीपल्स पार्टी में भी कहा जाता है कि ये एक ग्रुप इनका है, एक ग्रुप उनका है। देखें, ये बातें सिर्फ MQM पाकिस्तान के लिए ही क्यों चैनल्स पर आती हैं, दूसरी पार्टियों के लिए क्यों नहीं आती? उनके लिए भी तो कहा जाता है। कामरान साहब तमाम जो सियासी जमातें हैं, अगर वहाँ इख्तलाफ हो या ग्रुप बंदी हो उस पर तो हम डिस्कशन तो तमाम चैनल्स करते रहते हैं, सिर्फ MQM पाकिस्तान पर नहीं। लेकिन आपने एक जो बात की थी उस पर मैं वजाहत चाह रही हूँ। आप कह रहे थे कि जो लोग, और मैं चाह रही थी कि आप वजाहत करें आप किन लोगों की तरफ इशारा है जो अलहदा करना चाहते हैं या ये दरारों को ज़्यादा उछालते हैं। ये कौन लोग हैं, कौन दबाव डाल रहे हैं? मैंने तो एक काम आपको कहा ना कि तहरीक इंसाफ के एक निचले दर्जे के खुद जो कहते हैं ना, वाडा साहब की तरफ आपका इशारा है। आपने आपको खुद लीडर कहने वाले और वो इस कोशिश में फ्रीलांसरली इस कोशिश में लग जाएं और अपने आप को एजेंसियों का नुमाइंदा या आलाकार ज़ाहिर करें, जो कि जब हम पता करें तो वो एजेंसियां इस बात को डिनाई कर दें कि हमारा तो दूर दूर से इस शख्स से वास्ता नहीं है। लेकिन मैं नाम इसलिए यहाँ किसी का नहीं ले रहा क्योंकि हमने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से इस बात का ज़िक्र किया है, तस्करा किया, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि उस शख्स के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आपके चैनल्स पे उसका नाम भी लेंगे और उसकी बातें भी बताएंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा, सैयद अली रज़ा आबदी साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो इस पर आप दोनों की बातचीत हुई है, एक ही किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अली रज़ा भाई हमारे MNA हैं और उन्होंने पिछले दिनों के वाक़यात जो मर्जर के हवाले से हुए, उन्होंने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अपनी MNA शिप से रिज़ाइन किया है।
ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے، میری بات چیت ہوئی ہے، کل وہ میرے پاس تھے، میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی تھے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم منا لیں گے، لیکن جو تحفظات ہیں وہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ہی بات چیت ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات کی جا سکے گی۔ اچھا، لیکن اگر ضم کرنے کا معاملہ اب تو ختم ہو گیا ہے، ڈیڈ، تو اب مزید کیا تحفظات ہیں؟ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے ایک رکن ہیں، ان کی بھی شکایت آپ نے تحریک انصاف کے اعلیٰ قیادت سے کر دی ہے، تو اب کیا تحفظات رہے ہیں؟ دیکھیں، تحفظات اور ناراضگیاں تو اپنے جس طرح باپ کی بچوں سے بھی ہوتی ہیں اور بھائیوں کی آپس میں ہوتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ گھر میں بھی ہوتی ہیں، بیگم سے بھی تحفظات ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کامران صاحب کہ پھر چینلز پر آ کر یا پریس کانفرنسز کے ذریعے یا ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پر اعلان تو نہیں کی جاتی یہ اختلافات، یہ تحفظات۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بات بڑی واضح طور پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس تحفظات کے بارے میں صرف ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے بات ہوئی تھی، اور 24 گھنٹے کے دوران میں نے کسی بھی چینل پر بشمول ڈان کے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی تذکرہ کیا، نہ کوئی علیحدگی کی بات کی، یہ باتیں چلتی رہیں۔ لیکن رات کو جب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی والدہ، جن کو میں اپنی والدہ کی جگہ سمجھتا ہوں، اور میری جو بہن ہیں فاروق ستار صاحب کی مسز، جب وہ میرے گھر تشریف لائیں تو میڈیا یہاں آ گیا اور کارکنان بھی آئے، جس کو میں نے بڑا ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ وہ کارکنان یہاں کیوں آئے، اور کیونکہ وہ والدہ ہیں تو میں نے ان کو یہاں پریس کانفرنس میں، کیونکہ میڈیا تھا اور مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں میڈیا جو 2-3 گھنٹے سے میرے گھر کے باہر کھڑا ہے جس کو میں نے نہیں بلایا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات کی، پارٹی کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے بات کی، پارٹی کے کسی اختلاف رائے یا اختلاف کو وہاں ڈسکس نہیں کیا، اور میں نے ان کی والدہ اور وائف کو، جو میری بہن بنی ہوئی ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ امی 2 والا ایپیسوڈ یہاں کہلایا جائے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ والدہ کو سیاست میں لایا جائے، تو میں عزت اور احترام کے ساتھ یہ ان کی بات کو مانتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ جب ڈاکٹر فاروق ستار کراچی آئیں گے اور میں ان سے اپنے تحفظات کے بارے میں بات کروں گا، اور پھر میں اپنے جو بھی میرا موقف ہوگا میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس میں واضح کر دوں گا۔ اچھا کامران صاحب، سلیم شہزاد صاحب بھی اپنی نئی سیاسی جماعت لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں، میں پچھلے دنوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، سلیم شہزاد صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے اور میری عیادت کے لیے ان کا بہت شکریہ، وہ آئے تھے، لیکن انہوں نے وہاں مجھ سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ MQM پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں پارٹی کے سامنے، رابطہ کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا اعلان کیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک آدمی اپنے لیے کچھ نہ کچھ اچھا سوچنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب جیسے PS 114 کے جو ضمنی انتخابات تھے اس میں MQM پاکستان کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی اور آپ ظاہر امیدوار تھے MQM پاکستان کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ پہ کوئی دباؤ رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ بھی تصحیح کر لیں اس کی کہ MQM پاکستان نے تو مائنس لنڈن PS 114 میں 18,100 ووٹ لیے، جبکہ وہ بائی الیکشن تھا اور حکومت وقت نے اس میں ہمارے ساتھ دھاندلی کی۔ RO الیکشن تھا، جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے انہوں نے ووٹ بڑھائے اپنے، اور ہمیں شکست نہیں ہوئی، عوام نے ہمیں وہاں جتوایا، اور 18,000 ووٹ بھی اگر رکھ لیے جائیں تو MQM پاکستان کے لیے مائنس الطاف حسین صاحب 18,160 ووٹ لینا میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی ہے، اور MQM نے اس سے گین کیا ہے۔ کامران صاحب، بہت بڑا ہمیں وقت دینے کا اور وضاحت دینے کا۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے امریکی وزیر دفاع کا دورہ، امریکہ نے کیا مانگا، پاکستان کیا دے سکتا ہے۔
अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल जेम्स मैटिस पाकिस्तानी दौरे पर ट्रंप इंतज़ामिया का क्या बयान लेकर पहुंचे हैं और पाक अमरीका ताल्लुकात में अब भी कई दूरियां हैं, इस पर बात करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने का। पहले तो जनरल साहब, अमरीका क्या मांग रहा है? क्योंकि एक तरफ हमने देखा है कि CIA के जो चीफ हैं, डायरेक्टर हैं माइक पॉम्पेओ, उनका कहना है उन्होंने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है कि अगर महफूज ठिकानों को हम नहीं ख़त्म करेंगे तो वो खुद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पर बात यह है कि अभी तक जो गुफ्तगू शनीद हुई यहाँ पे, उसका तो कोई इलामिया कोई चीज़ बाहर नहीं आई, सामने नहीं आया। लेकिन जो आपने जिक्र किया जिस खबर का, उन चीज़ों के हवाले से अगर हम बात करें, और पास में जो जब ट्रंप ने अपने कार्ड्स रखे और पाकिस्तान को बड़े टफ लैंग्वेज में बात की, उसके बाद से जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी रोशनी में मैं अगर देखूं तो मैं चंद एक चीज़ें जो आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि अगर यहाँ पे कोई सेफ हेवन्स होते तो पहली बात यह कि पाकिस्तान और उसकी अफवाज इतना बोल्डली, इतना खुल के ये बात ना करते। उन्होंने बहुत दो टोक और यहाँ तक कहा कि अब दो मोर की आपकी बारी है। एक ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर अमरीकियों के पास कोई सबूत होते तो वो आज नहीं बहुत पहले से हमारे मुंह पे मार देते कि जी ये देखें ये है, जो सबूत भी कोई नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर हो रहा है कि ड्रोन हमलों में फिर दोबारा से कुछ हद तक इजाफा हो रहा है। वो हुआ, लेकिन ड्रोन हमले जो हैं वो उन्होंने बॉर्डर एरिया पे किए हैं, जिसका जो मुझे अंदाज़ा है वो कुछ 100-200 गज 300 गज अफगान साइड पे हुए हैं, वेरी क्लोज टू आवर बॉर्डर एरियाज पे। जी, तो वो सेफ हेवन तो नहीं होती। वो बॉर्डर एरियाज में हमेशा हमारे तो अनकंट्रोल्ड बॉर्डर्स हैं। जो दूसरा जो इसमें पहलू है जो जहन में हमें रखना होगा वो ये है कि अमेरिका के पास शवाहद नहीं, लेकिन वो कहता है कि हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान बातचीत में मदद करे, लेकिन बातचीत में कोई उसकी दिलचस्पी नज़र नहीं आती, कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आती, बातचीत के लिए वो कोशानी नज़र आते। लेकिन क्या अमेरिका कोई शवाहिद सबूत के बगैर ऐसा इतना बड़ा मुतालबा वो भी पब्लिक स्पेस पे कर सकता है? अमेरिका एक बुनियादी तौर पर मुनाफिक मुल्क है, सो आपको इस पर शुबा नहीं होना चाहिए। इराक में उन्होंने क्या किया था? कोई सबूत नहीं था यहाँ तक के, और ये इसको आप रिलेट करें इराक के सीन से, ये आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये इट इज़ एग्जैक्टली द सेम स्टोरी। इराक में कोई सबूत नहीं था, यहाँ तक कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उन्होंने मैन्युफैक्चर था वो, उन्होंने जाके विजिट किया, आके सर्टिफिकेशन दी, उन्होंने सर्टिफाई किया कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी। अमरीकियों ने कहा नहीं, हम तो कहते हैं। आज गॉर्डन ब्राउन कहता है कि जी अमरीकियों ने हमारे साथ झूठ बोला और हमें नहीं, झूठ नहीं। दिस इज व्हाट दे वांट टू हियर। अभी भी नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है उसने स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को ये ख़त्म करनी चाहिए सेफ हेवन्स। नेटो की मीटिंग में वहाँ ये गया हुआ था रेक्स टिलरसन, तो उसने भी वहाँ पे यही राग अलापा। ये सारे इकट्ठे हैं और मकासद उनके लिए बेशक यूरोपियन यूनियन के लिए इतने वाज़े ना हों, नेटो के लिए इतने वाज़े ना हों, लेकिन अमेरिका के हवारी हैं, उसके पीछे चलना है तो वो जो कहेगा वो करते जाएंगे। ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर सबूत होता तो उन्होंने आपको बिल्कुल पकड़ाने थे मुंह में, लेकिन सबूत उनके पास नहीं है। अब जो आपके साथ डबल टॉक हो रही है, CIA वाला बड़ा टफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जो मैटिस आए हैं वो निस्बतन खुद वो अच्छा। अब उसमें चीज़ ये है कि एक तरफ तो उनके यहाँ पे खित्ते में डिज़ाइन और हैं, क्योंकि यहाँ पे खित्ते में सूरत हाल पिछले 2-3 साल में बहुत बदली है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ उन्होंने आपसे रास्ता भी लेना है, अपना सामान भी गुजारना है यहाँ से अफगानिस्तान के लिए। सो वो आपको दो टोक इस तरह नहीं कर रहे, लेकिन अंडर प्रेशर लगातार आपको ला रहे हैं, उसके लिए एक्टिविटी बढ़ेगी। वो प्रेशर इस तरह है, जो खित्ते में सूरत हाल हुई है तब्दीली, उसमें यह है कि एक तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमने इंडिया को मेन रोल देना है, और इंडिया को अगर उन्होंने मेजर रोल देना है ताकि चाइना के ऊपर भी चेक आए और अफगानिस्तान में उसकी रिट रहे, और इंडो पैसिफिक रीजन जिसकी अभी वो बड़ी बात करते हैं कि जी वहाँ के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान को तैयार किया है। तो इंडिया का हमें ये पता है कि अमेरिकन राइटर्स भी लिखते रहे हैं कि इंडिया की तरफ से अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रोल बैक होना चाहिए। लेकिन जनरल साहब, एक और बात है कि अगर हम अपना बयानिया, अगर हम दुनिया को मनवा नहीं सकते तो फिर
फ़ायदा क्या? मैं बताता हूँ, दुनिया मानेगी नहीं। इराक की मानी थी किसी ने जब वो कहते थे कि हमारे पास नहीं, और बाकी भी बड़ी दुनिया कहती रही कि दुनिया पूरी में मुजाहिरे हुए। लेकिन इराक और पाकिस्तान में थोड़ा सा तो फर्क नहीं, है। फर्क है, लेकिन पाकिस्तान का बयानिया देखे ना, जब आपका एक डिजाइन, अब मिसाल के तौर पे आपने वो शेर और भेड़ की कहानी तो सुनी हुई है, जब वो कहता था कि जी पानी गदला है और तुमने किया है, तो भेड़ बेचारी सफाइयां पेश करती रही कि पानी तो मेरी तरफ आ रहा है। माजी में भी हमने देखा है ना कि पाकिस्तान में भी हमने भी दोहरी पॉलिसी जो है वो भी अपनाई है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक हम माने या ना माने, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल फ़र्क है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है गलत है, लेकिन हाफिज़ सईद या जमातुद दावा अक़वाम मुत्तहिदा, मिसाल के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा ने डेजिग्नेट किया हुआ है, उनको करार दिया हुआ है कि दहशतगर्द तंजीम है, दहशतगर्द है वगैरह वगैरह। क्या हाफिज़ सईद की रिहाई, चाहे अदालत या सबूत नहीं थे, उनकी रिहाई क्या पैगाम था अमेरिका को? नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने हाफिज़ सईद को बगैर किसी सबूत के बंद कर दिया। हमारा शहरी है, हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। अमेरिका ने किसी सबूत के बगैर उसके ऊपर लेबल लगा दिया। आज दिन तक क्यों नहीं हाफिज़ सईद के बारे में सबूत दिया कि अदालतों में केस चल सके? हमारी अदालतें जिन लोगों को हम पकड़ते हैं उनको सबूत के बगैर सजाएं नहीं देती, क्योंकि हमें पता होता है कि ये हमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने पड़े। इसी वजह से कि अदालतें उनको सज़ा नहीं देती, क्योंकि हमारे पास पुलिस की वो जो होती है अमूमन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की भी वो मुकम्मल नहीं होती। आप तवक्को करते हैं कि सिर्फ इंडिया ने कहा लिहाजा फांसी लगा दी। इंडिया की बात तो नहीं है, इंडिया की बात नहीं, क्योंकि हम अगर या अमेरिका ने कह दिया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हम साइट करते हैं कश्मीर के मामले पे, उसमें आपको पता है कि सवाल जो मैं कर रही हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा ने ही इनको डेजिग्नेट किया हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम एक बैन अक़वामी सतह पर हमारी इज्जत हो, हमारी बात मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अदालत का फैसला अगर हक में हो तो वो अच्छा होता है, जो हम चाहते हैं हमारा मौक़िफ़। क्या ये पैगाम था या नहीं? और इस पे अमेरिका का रिएक्शन? मेरा ख्याल है कि आप दुरुस्त नहीं बात उस पर समझ रही या कर नहीं रही। एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि जब यूनाइटेड नेशन किसी के ऊपर पाबंदी लगाती है, उसको डेजिग्नेट करती है, तो उसके साथ जो स्टिपुलेटेड एक्शंस होते हैं वो सारे कर लिए गए हैं। उसमें उसको डिवेपनाइज करना होता है, उसके सफ़र पे पाबंदी होती है, उसके फंड्स फ्रीज करने होते हैं, वो सब हो चुका है। हम यूनाइटेड नेशन को किसी भी चीज़ पे जवाब देनी है अब, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। ये अलग किस्सा है कि उसको हमने ओवर एंड अबव दुनिया को खुश, जब ये ट्रंप ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की तो हमने उठा के उसको बंद कर दिया। ये तो जनवरी में हुआ था। अच्छा, तो जनवरी में या उस वक्त, हाँ, या उससे पहले हुआ था। बहरहाल जब इंटरनेशनली को शोर मचाने ने बंद कर दिया। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये अदालती कार्रवाई ऐसी है जहाँ हमारे अपने लोगों को सजाएं नहीं होती जब हम सबूत नहीं देते, तो यहाँ तो इंडिया और वही बाहर वाले कह रहे हैं और हमें सबूत भी कोई नहीं दे रहे। देखें, हाफिज़ सईद का कसूर क्या है? हम वाई शुड बी से कि ही इज़ अ टेररिस्ट? उसका कसूर सिर्फ ये है कि यहाँ से बैठा वो कश्मीर की हमायत करता है कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, और कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, क्या कश्मीर के लोग वेपन नहीं उठाना चाहेंगे किसी वक्त पे? तो जो ये चीज़ें हमें भी, मिली मुस्लिम लीग जो है और इसकी जो मेन स्ट्रीमिंग की बात है, यही वजह है ताकि एक लेजिटिमेसी मिले? नहीं, ये किस्सा नहीं है, उसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। वो मैं उसमें बड़ा अच्छा किया आपने क्वेश्चन कर लिया। मैं आपको बता दूं 1.5 मिनट है हमारे पास, बस मैं 1.5 मिनट में कोशिश करता हूँ कि उसको। अच्छा, मसला ये है कि ये लोग आपके, अगर इनके ऊपर आप सख्ती करें जबकि हमारे पास कोई सबूत नहीं इनको सजाएं देने का, हम इनको मारते फिरें, ये भी अफगानिस्तान दौड़ जाएंगे, जो उनके मेहमान होंगे, जैसे हमने TTP को किया, और ये फिर हमारे ही खिलाफ लड़ेंगे। इनमें से भी पहले ग्रोथ पंजाबी तालिबान इन्हीं में से निकल के बने थे। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इनको वेपन्स भी इनसे ले लिए जाएँ, इनको डी रेडिकलाइज किया जाए ताकि दे शुड बिकम यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और यहाँ रह के अपना काम करें, सियासत में आना चाहें कुछ आए। अच्छा, सियासत में आने का, ये मेन स्ट्रीमिंग का जो बात है, उसके कुछ फ़ायदे हैं। उसका ये है कि ये अपना पहले तो मैनिफेस्टो डिक्लेयर करेंगे, उसमें टेररिज्म नहीं होना चाहिए, दे शुड डिनाउंस एवरीथिंग। दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने फंड्स और सोर्सेज ऑफ फंड्स वगैरह सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करेंगे, तो इनके पैसों पे चेक रखना आसान होगा आपको। सो इनको हम चाहते हैं कि किसी न किसी शक्ल में, किसी मॉनिटरिंग सिस्टम में, ये मेरी तजवीज़ है कि इनको किसी मॉनिटरिंग सिस्टम में लाया जाए, वेपन्स जिनके पास हैं उनको निकाला जाए, उनको डिलाइज किया जाए, उनको किसी न किसी तरह उनको कंट्रोल किया जाए कि वो आपके कंट्रोल में रहें। अगर इनको हमने सख्ती करके कुछ करने की कोशिश की, ये दे आर स्कैटर्ड पीपल, इनमें से पहले ही जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ ये ठीक है। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, क्योंकि अब वक्त अब ख़त्म हो गया है, न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है।